Hello, Tarun. How are you? I'm good, sir. How are you? I'm doing well. Thank you. ओके सो तरुण हमने मॉर्निंग में जो बात करी थी ज्योग्राफी का तो यू वर टेलिंग मी कि क्लास नाइन्थ हो चुका है Yes, sir. तो Chapter 2, 3, 4, 5. 2 3 4 5 ओके Yes, दैट इज ऑन इंडियन कॉन्टेक्स्ट है ना yes, sir. उसको पॉज करके वी स्टार्टेड आई हैव आस्क्ड यू टू स्टार्ट क्लास 11th Yes, sir. Fundamentals of physical geography. राइट सो हाउ मेनी चैप्टर्स ऑफ दैट यू हैव फिनिश्ड टिल द टाइम लाइक सुबह से अगर Sir, काउंट actually, sir, I was a bit busy today, so I couldn't do that. But I'll be doing it from tomorrow onwards. अच्छा ओके नो इश्यूज बट जैसे हमने बात करी थी वी हैव टू एज पर ज्योग्राफी इज कंसर्न द सीक्वेंस वुड बी we have to finish the world physical geography first. Yes, sir. Okay, the world physical geography that too from class 11th, first part fundamentals of physical geography. Then Yes, we'll sir. do Ji, sir. on part one completely, and from part two the weather, the climate chapter. Yes, sir. The climate chapter and the last table in the last of the chapter. In the last page, the Yes, table sir. of bio. Very good, very good. And chapter number 15 से 25 तक, that 11 chapters we need to only uh, go through and just need to know in what areas the same biomes have been founding. Okay, and Yes, the sir. same biomes is there. Another thing, what exactly the people do in the same biome, in the same, like if it's Mediterranean climate, if it is Chinese climate, right? What is the occupation or a business of people? Yes, sir. Like viticulture in the Mediterranean climate is quite commonly practiced. Yes, exactly. And one more thing, like the proportion of temperature as well as rain. Sure, sir. Rain, very good. So as the temperature increases, the rainfall increases or not, and if is it like whole year rainfall or whole year winter, है ना? In some regions like in Europe, like in winter we they experience the rainfall. So that Yes, kind sir. of हाँ, so यूपीएससी क्या करती है कि वैसे मल्टी स्टेटमेंट देती है एंड अकॉर्डिंगली हमें पता करना होता है. तो वो 8-10 लाइन हर बायोम्स की सफिशिएंट है, नॉट मोर देन 8 to 10 लाइन्स. ठीक है, sir. Okay, and उसके बाद we'll come to the physical part. We'll finish 9th and 10th. Yes, sir. Then we'll finish class 11th second part, Indian physical environment. Okay, that is really very important in CRT for mains Yes, sir. perspective. है ना? क्योंकि मेंस में अराउंड लाइक 125 120 नंबर का तो ज्योग्राफी आ जाता है, जी. अराउंड 45, है ना? ओके, सो इसीलिए सेम चीजें रहेगी. द स्ट्रेटेजी विल बी सिमिलर फॉर मेंस एज, है ना? जो हम Okay, डिस्कस sir. कर चुके हैं. Then we'll do uh, the human part. The Indian human will do first, Indian people and economy, and then world human. जी, sir. Class 12. Class 12 ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. वर्ल्ड ह्यूमन कैन बी फिनिश इन कपल ऑफ आवर्स. काफी सिंपल एंड नहीं पूछते हैं. हार्डली वन क्वेश्चन मे कम. ओके, चलो, कम बैक टू द लाइक टुडे विल डू समाचार मंथन 33 डिस्कशन. जी, sir. Okay, I'll discuss few of questions, the approach of few of questions. Okay, in which you may face difficulty or the score is not good, है ना? In such a those questions only we'll discuss. Like I can see here, the first question, you are rewarded with 5 numbers out of 15. Yes, sir. Okay, so we can expect 7 numbers if the question is of 15 markers. So we'll just read the question here. What do you understand by what do you understand about gig economy? Geek. Right. Discuss the significance of the sector in the Indian economy, which is reeling under pressure from the pandemic and subdued employment generation. Going ahead, what according to you are issues associated with the sector? Actor. ठीक है. हाँ, अब हमारा रूल है कि 2 बार क्वेश्चन पढ़ना है. जी, सर. ओके, हाँ, अब हम तो यहाँ पे इट्स ओके, बट 2 बार सवाल पढ़ना होता है. उसके बाद क्रक्स ढूंढना होता है. तो यहाँ पे क्रक्स क्या है? Sir, basically, the question first of all asks us about the gig economy itself. We have to define it in the introduction part, and then it revolves around the what are the issues and due to the COVID-19 pandemic, how come this economy is coming under pressure? How come we are able to we will be going to address these issues? I guess the question revolves around these things only. Very good, very good. But this is हाँ, but
the question is revolving around these issues only, but what you have told the crux as well as demand of question. Yes, sir. But as per intro is concerned, we need to know about the crux of the question only. Yes, sir. That is Gig gig economy economy. here. Ji, Yeah, sir. perfect. So we need to, like, there are 2-3 approaches of intro. So we can go with intro definitional approach. Ji. We can separately go with the factual approach. The third approach would be the current approach. जी, स्टैट्स या फिर मतलब करंट और डेफिनेशन को मिक्स कर सकते हैं हम. Yes. So those 3 things you can use separately, or the best approach what you also suggested कि जो हमने बात भी करी थी कि definitional plus stats, factual, definitional plus factual, or current plus facts. Okay. So here I guess definitional plus fact will go good, will go coherently. Okay. Everyone's approach can be unique, and you can go ahead. It's not like that कि अगर आप stats use करोगे तो ही नंबर मिलेंगे. अगर आपका अप्रोच टू द पॉइंट है और वो क्रक्स जो क्वेश्चन के आर्गुमेंट को सपोर्ट कर रहा है, अच्छे से एड्रेस कर रहा है, तो आपको नंबर मिल जाएंगे. ठीक है. ओके. बेस्ट ऑफ योर नॉलेज यू कैन यूज एनी ऑफ द अप्रोचेस. सो हियर यू हैव यूज्ड द, I think, Definitional definitional. approach. Yes. Yes, sir. Gig economy is a form of labor market where the employer Where the work from employee work in a temporary and contractual manner and and as far freelance. as freelancers outside the traditional employer-employee relationship. Very good. Very good. The evaluator has read And overwrite on that. overwrote on that. Yes. That's the reason I Sir, couldn't if you want, I can send you the unchecked copy as well. If you are as of now it is okay, sir. It's okay. As of now it is good. I can see the context and I can understand. No worries. Okay. Okay. So see, definition is good. Like here कुछ कीवर्ड आने चाहिए तरुण, जैसे फ्रीलांसिंग कीवर्ड है, जैसे गिग इकोनॉमी अभी फ्लरिश कर रही है, ये भी एक कीवर्ड है. ठीक है. जैसे यहाँ पे कुछ भी पेंडिंग नहीं होता, डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, ये भी एक कीवर्ड है. ओके. ये कीवर्ड डेफिनेशन आनी जरूरी है. 2-3 कीवर्ड वो आ चुके हैं, लगभग आ चुके हैं. ट्रेडिशनल एम्प्लॉय रिलेशनशिप भी बाहर है, वो भी दैट इज व्हाट. ये 3 कीवर्ड आ चुके हैं. एडिशनली आप स्टैट्स डालना चाहिए था, क्योंकि एक थोड़ा सा एक्चुअली सर मेरे पास अभी रेडी स्टैट्स नहीं थे गिग इकोनॉमी के रिगार्डिंग के हाउ मच डज इट कंट्रीब्यूट टू आवर इकोनॉमी, व्हाट परसेंटेज और what was the actual amount in billions of terms कि भाई I could state कि this much $1 billion economy has been flourishing in India as far as gig sector is concerned. So that is why I couldn't mention it here. अगर ऐसा होता है, इफ यू आर इन दैट कंडीशन कि सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द फैक्ट्स और द स्टैट्स और आई हैव नॉट वर्क ऑन इट, लाइक मैंने होमवर्क नहीं करा है उस चीज का, तो एक पैटर्न पे बात किया करो. मतलब जो भी पैटर्न है कि इंक्रीज हो रहा है गिग इकोनॉमी या डिग्रेड हो रहा है. कोविड के टाइम पे गिग इकोनॉमी बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, या अनएम्प्लॉयमेंट रेट को गिग इकोनॉमी कम कर रहा है या बढ़ा रहा है. सो यू कैन, एक पैटर्न जो हम इकोनॉमिक सर्वे में पैटर्न देखते हैं, जो बजट में स्टैट्स का, समझ गए ना. तो अगर आपको पता है कि जैसे 56% इकोनॉमी जो है अभी गिग इकोनॉमी है, न्यू एम्प्लॉयमेंट जो मिल रही है 56% गिग इकोनॉमी के अंडर मिल रही है, फ्रीलांसिंग, एंड पीपल लाइकिंग, यंग जनरेशन लाइकिंग, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन नहीं है और उसका फायदे बड़े हैं. मतलब आपको लुक्रेटिव है जॉब, देयर इज नो बाइंडिंग थिंग्स, कॉन्ट्रैक्ट दोनों तरफ से होता है, वो भी नहीं. हाँ, एंड वन मोर पॉइंट है कि ग्रोथ फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हैं और सर इजी हायर फायर है, तो मतलब हर वो एम्प्लॉइज के लिए एम्प्लॉयर्स के लिए दोनों के लिए बेनिफिशियल है. विन विन सिचुएशन. ठीक है. तो 56% है. आपको स्टैट्स नहीं पता, कोई बात नहीं, बट बढ़ गया है आपने ये बताना चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट को फायदा होता है. ओके, ठीक है सर. तो हाँ, और एम्प्लॉयमेंट इज वेरी क्रूशियल और प्लेस वेरी पिवोटल रोल एज पर इकोनॉमी इज कंसर्न, इंडियन इकोनॉमी. सो definitions related to employment, stats related to employment, and remittances, and the people who are working outside India, इनका सबका स्टैट्स, मिडिल ईस्ट में कितने लोग हैं, इन सबका स्टैट्स रख लो अपने पास. ठीक है सर.
एक सेकंड सर, आई विल नोट इट डाउन। हम्म, यस सर। ओके। हाँ, तो गो अहेड। हाँ, अब हमने क्रक्स कर लिया, द गिग इकोनॉमी डेफिनेशन प्लस फैक्चुअल। देन विल कम टू द डिमांड ऑफ क्वेश्चन थ्रू बॉडी। सो बॉडी में हमने सिग्निफिकेंस की हेडिंग देनी है यहाँ पे, क्योंकि सिग्निफिकेंस ऑफ द सेक्टर पूछा है। लाइक यस सर, एग्जैक्टली क्वेश्चन में कोट किया था कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द गिग सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी। वेरी गुड। तो आपने यहाँ पे हेडिंग डाली है सिग्निफिकेंस ऑफ द गिग सेक्टर इन पोस्ट पैंडेमिक इंडियन इकोनॉमी, एंड आपने नीचे लिखा है सर, एसोसिएट विद। as you have told me कि we have to make subheadings, so I have tried to subhead it under what is the significance for employers, what is the significance for employees and all that. दिस इज गुड अप्रोच, दिस इज गुड अप्रोच। जनरली यहाँ पे बच्चे सोचते नहीं है कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों के अलग अलग सिग्निफिकेंस यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो व्हाट यू हैव डन इज गुड, ठीक है, Yes, बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ कॉपीज, तो बच्चों को ये चीज नहीं है, तो वेरी गुड। ऐसे ही डिफरेंट सोचना है, आधा नंबर का पक्का फायदा हुआ है आपको, हमें यहाँ पे एक चीज करना, सिग्निफिकेंस ऑफ एम्प्लॉयज आपने लिखा है, लेकिन जैसे मैंने मेंशन करा था कि जैसे फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, नीति आयोग का एआरसी है, हम इन जी, डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं तो हमें फॉर्मल फील होता है, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर टच फील होता है। वो टच अपने आंसर में लाओ। एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज टाइप ऑफ लॉ, मतलब यहाँ पे आपने एरो दे के पॉइंट्स लिखे हैं, तो उसको 1 2 3 करो। एंड अगर सिग्निफिकेंस ऑफ एम्प्लॉयज को 1 कर सकते हो, और 3 पॉइंट्स को 1.1 1.2 1.3, समझ गया सर। समझ गए। और मार्जिन के इधर भी लिख सकते हो, लेफ्ट साइड ऑफ द मार्जिन भी आप पॉइंट लिख सकते हो, सब हेडिंग वाला। वन ऑफ 15 नंबर, ओके। So we are expecting to elaborate. So you have put it like 3 headings, 3 subheadings, and accordingly you have elaborated the things. Like आपने थर्ड हेडिंग पुट करी है गवर्नमेंट, सिग्निफिकेंस फॉर सिग्निफिकेंस फॉर गवर्नमेंट क्या है? ओके, हियर यू हैव रिटन विद गवर्नमेंट सेक्टर अनेबल टू क्रिएट इनफ जॉब्स, गिग प्रोवाइड्स ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ। वेरी, ठीक है, दैट इज ओके। आप ये भी लिख सकते थे कि ब्लू कॉलर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है गिग इकोनॉमी, लेकिन देर इज जी, स्कोप टू गो टू व्हाइट कॉलर, वाइट कॉलर ठीक है। एज वेल। ओके, तो सिग्निफिकेंस हमने बता दिया, दैट इज ओके। कम टू द इश्यूज ऑफ द सेक्टर, जो सेकंड हमारी डिमांड है। अगर हम क्वेश्चन पे देखो, बार बार क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन पे अगर आते हैं तो सिग्निफिकेंस हो गया। अब हम पूछा है गोइंग अहेड व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर इश्यूज एसोसिएटेड विद द इश्यूज। सेक्टर। यस सर। तो सॉरी, ओके, come to the issues here. uh, you could write like lot of issues, like 6 7 issues. I'll just see how many issues you have written. Issues with respect to employees, issues with respect to सोसाइटल stakeholders, स्टेक and wait one, chalo. uh, no society, no social नो security सोशल paid less सिक्योरिटी। than the minimum, often working beyond in working hours, right? कुछ फॉर्मल चीजें नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो वर्किंग आवर्स से ज्यादा काम करना पड़ रहा है, कभी कभी वेजेस टाइम भी नहीं मिलती है ना। सो जी दीज सर। आर द प्रॉब्लम, अनफेयर वर्किंग मैटरनिटी कंडीशन। बेनिफिट्स। यस सर, मैटरनिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते इनको, या फिर कोई पेंशन या ग्रेचुटी या कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है इनके लिए। इवन हेल्थ कवर नहीं है इनके लिए कि भाई कोई हेल्थ इंश्योरेंस इनके लिए अवेलेबल हो। ऑफन, ऑसम ऑसम, वेरी गुड। तो ऑफन ये होता है कि उनको ना कोई स्कीम का पता होता है, ना कोई गवर्नमेंट, सॉरी, ना कोई प्राइवेट एंटिटी उनको देती, ठीक है, क्योंकि वो गिग में है, तो उनका कोई भी बैंडिंग नहीं है, ना पीएफ है, ना ग्रेट्युटी है, ना इनको कुछ और भी अलाउंसेस कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कुछ एक्सीडेंटल इशू हो गया तो इनको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। जी, ये आप लिख जी सकते हो, अनफेयर वर्किंग कंडीशंस है, ठीक है। अ, और एक चीज है जो यहाँ पे मैं दिख नहीं रही है, कि रूरल पॉपुलेशन के लिए गिग सेक्टर काफी कम है, ना के बराबर काम करता है। सर, आई हैव मेंशनड इट अंडर द फोर्थ पॉइंट, इनइक्विटेबल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज। वेरी गुड, ओके, हाँ, गॉट गॉट द पॉइंट, ठीक है। आप सब हेडिंग को भी सब हेडिंग दे सकते हो, जैसे नो सोशल सिक्योरिटी कैन बी अंडर द सब हेडिंग। यहाँ पे यहाँ पे खैर आपने इलॉबरेट ही नहीं करा है, अगर आपके पास फैक्ट होती तो आप कहते कि नो गिग इकोनॉमी इन मिनिमल और नो गिग इकोनॉमी इन रूरल एरियाज, ऐसे करके कुछ फैक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। चलो, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इनइक्वालिटी बढ़ाता है।
ठीक है, रूरल एंड अर्बन में गैप बढ़ाता है, ये जी कॉन्सिक्वेंसेस है, ठीक है। इश्यूज आर ओके। ये बहुत अच्छी चीज है जो तरुण आपने करी है कि जैसे मैंने पहले भी बोला था कि जहां जहां पे इश्यूज पूछते हैं वहां पे वे फॉरवर्ड लिखना वे जरूरी फॉरवर्ड है, लिखना जरूरी है सर। राइट? एज वी आर आपने बताया था। वेरी गुड, एज वी आर एस्पिरेंट टू बी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, तो हमें कि हर एक चीज का सॉल्यूशंस पता होनी चाहिए, ठीक है। जी सर। इंक्रीज सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, शॉर्ट फॉर्म मत लिखो, JAY, PMJAY, तो ट्राई टू यूज लॉन्ग फॉर्म, जीवन ज्योति योजना, आपने सही लिखा है, JAY को जन हमें आरोग्य पता है। योजना हाँ, हाँ, यस, लेकिन GS का पेपर है तो ट्राई टू यूज लॉन्ग फॉर्म, ओके। ठीक है सर। कंक्लूजन पे आते हैं, गिग इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट ग्रो एट अ CAGR of 17%. CAGR ऑफ 17%, ये आपको कहाँ से मिला? सर एज मतलब वी हैव प्रोवाइडेड द वी हैव बीन प्रोवाइडेड द मटेरियल इन समाचार मंथन, सो उसमें दे रखा था कि इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट a CAGR compound annual growth rate of 17% till 2025. So sir, वेरी I गुड। thought since it is going to increase in its significance in the coming future, that will be a good conclusion looking forward. बिल्कुल, देखो, गिग इकोनॉमी को हमें बढ़ावा देना है, गवर्नमेंट भी यही चाहती है और हम भी यही करेंगे क्योंकि एम्प्लॉयमेंट रेट इससे कम दिख रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, Unemployment. जो Yes. रेट बढ़ रही है वो कम हो रही है, तो बिल्कुल इसको बढ़ावा दो। यू केम अप विद द फैक्ट कि गिग इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट CAGR ऑफ 17%, ओके। दिस इज, यू कैन पुट इन कंक्लूजन। एडिशनली व्हाट यू कैन डू इज, लाइक बहुत टेक्निकल कंक्लूजन अगर जा रहा है तो थोड़ा सा उसको फिलोसॉफिकल एंड थोड़ा सा उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल पे ले आओ कि जो भी एक्ट्स हमारे पास है उसकी ट्रांसफर, उसकी एग्जीक्यूशन प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट ने थ्रू द एक्ट्स इसको कुछ रूल्स बनाने चाहिए कि ये थोड़ा सा फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ आ जाए, ठीक है, और गिग इकोनॉमी को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें आप लिख सकते हो। एंड कोई अगर फैक्ट हो ना तो ट्राई टू पुट इट इन इंट्रो। अब यहाँ पे इंट्रो में मैच नहीं होगी क्योंकि आप इसको कंक्लूजन में बताओगे कि ग्रो हो रहा है, बट जनरली जी फैक्ट्स आर फॉर इंट्रो एंड ऑप्टिमिस्टिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज, लाइक आप यहाँ पे SDG, सेकंड ARC, ये सब चीजें लाओगे, कमिटी, तो यही कंक्लूजन में ले आओ, ठीक है सर, ओके। आगे से ट्राई करूंगा। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.